BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ولی خان یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنے ساتھی طالب علم پر توہین مذہب کا الزام لگا کر سرعام مار مار کر ہلاک کر ڈالا. یہ واقعہ ریاست کا امتحان ہے. والد کی اپیل. لیکن میں اپنے وطن پاکستان سے، ریاست سے انصاف چاہتا ہوں. یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ کل اوروں کے بچوں کے ساتھ یہ واقعات نہ ہو جائے. افغانستان میں 9,800 کلو گرام وزنی امریکی بم کا حملہ. ٹارگیٹ ایریا لرز اٹھا. ملک میں رد عمل ہے کیا؟ اور دیکھیے گا کہ ترکی میں ریفرینڈم کس ماحول میں ہو رہا ہے، ملک کی نسلی اقلیتوں کی تشویش کیا ہے اور ملک کے آئینی ڈھانچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں قتل کیے جانے والے طالب علم مشال خان کو آج سوابی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. وہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم تھے. کل ایک بے قابو ہجوم نے ان پر توہین مذہب کا الزام لگا کر انہیں زد و کوب کر کے ہلاک کیا. مشال کے قتل کے خلاف آج پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں. مردان سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ. سوابی کے گاؤں زیدہ میں شعبہ صحافت کے 6 سیمسٹر کے طالب علم مشال خان کا جنازہ گھر سے اٹھا تو چند ہی افراد اس میں شامل تھے، لیکن جنازہ گاہ میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے. بچہ جی ہونہار بچہ تھا، یہ انٹیلیجنٹ تھا. ریشیا سے بھی انجینئرنگ کر کے آیا. یہاں پہ میتھس کمیونیکیشن جو ہے نا ولی خان یونیورسٹی سے. یہ تو ہمارے سامنے تو آج تک کبھی اس کی کوئی نیگیٹو ایسی کوئی چیز ہم نے دیکھی. افسوس جی سب کو ہے تقریباً. یہاں پہ اگر دیکھا جائے جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی ہیں وہ دیکھنے کے قابل تو نہیں ہے ویڈیوز. عبدالولی خان یونیورسٹی میں کل دوپہر کے وقت طالب علم مشتعل تھے. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق مشتعل طالب علم 3 طلباء کے خلاف تھے جن پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی مبینہ طور پر مذہبی گستاخی کی ہے. مشتعل ہجوم کل دوپہر کے وقت اس ہاسٹل پہ یونیورسٹی کی جانب سے آئے تو انتظامیہ نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اس ہاسٹل کے داخلی دروازے کو بند کر دیا تھا. ہجوم اس قدر چارج تھا کہ انہوں نے یہاں پر توڑ پھوڑ کی اور یہاں پر انہوں نے اس داخلی دروازے کو بھی توڑا اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہوئے جہاں کمرے میں مشال خان چھپے ہوئے تھے. اسے اس کمرے سے نکال کر پھر قتل کیا گیا. ہاسٹل کے کمرے میں ٹوٹ پھوٹ اور بکھرے سامان سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ گزشتہ روز یہاں کتنا تشدد کیا گیا ہے. ہاسٹل میں پڑا خون اور دیوار پر خون کے چھینٹے سارا واقعہ خود بیان کر رہے تھے. ماب میں بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں یہ مشتعل لوگ تھے، تو چند لوگ اسے بچانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ نہ بچا سکے، کیونکہ موب سے کالج یونیورسٹی جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مشتعل بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ تھوڑے لوگوں کے لیے ایون پولیس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، ورنہ ہم نے اس کے ساتھی کو بھی بچانے کی کوشش کی اور اس میں تو کامیاب ہوئے تھے. پولیس نے 60 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور مزید گرفتاریاں جاری ہیں. مشال خان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، مردان. اور BBC کے عثمان زاہد نے سوابی میں مشال خان کے والد محمد اقبال سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں. غالب کا ایک شعر ہے جی، وہ کہتے ہیں شر روائن پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی. اس ملک میں اظہار رائے پر جو صحیح بیان کرتے ہیں اس پر پابندی ہے. یہ زبان کاٹتے ہیں لوگوں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مار بھی دیا اور پھر الزام بھی ایسا لگایا. میں آپ کو خود، میں اس کا باپ ہوں، میرے سامنے وہ پلا بڑا ہے، ہمارا احترام کرتا تھا اور ہمارے کو اکثر جو ہے نا گھر پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا تھا. اور چونکہ ایک جرنلزم کا طالب علم تھا تو زیادہ تر جو ہے نا حضرت عمر کے انصاف کے نظام کا جو ہے نا حوالہ دیتا تھا. اور اسی حوالے سے جو ہے نا میں درخواست گزار ہوں، میں کسی پر ذاتی وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنے وطن پاکستان سے، ریاست سے
इंसाफ चाहता हूँ। ये इसलिए चाहता हूँ कि कल औरों के बच्चों के साथ ये वाक़यात न हो जाए। और ये है कि ये अकेला मेरे बेटे का मसला नहीं है, उधर जो है ना ये मसला है कि यूनिवर्सिटी पर लोग आकर उन्होंने गवर्नमेंट के रट को भी चैलेंज किया, तो गवर्नमेंट खुद अपना सवाल पूछे या अपना जो है ना ऐसा ही सब इंसाफ करे। आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? मैं तो जब इस सिस्टम का या इस निज़ाम का जो है ना वो मैं तज्ज़िया करता हूँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है हम गरीब लोगों के लिए, क्योंकि कानून एक ऐसा चीज़ है कि उमरा के लिए एक चीज़ है और गरीबों के लिए और चीज़ है। आप लोग खुद समझदार है, आपको पता है। और इंसाफ हम कैसे कह सकते हैं, अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि और लोगों को फिर जो है ना इस तरह अजियत से, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। और इसी मौजू पर बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर मेहदी हसन इस वक्त हमारे लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज़ एक बिफरे हुजूम के हाथों मिशाल खान का कत्ल, कुछ अरसे पहले पंजाब के कोट राधाकृष्ण में गरीब जोड़े को भट्टे में झोंक कर जिंदा जला देने का वाक़या, लाहौर की जोसेफ कॉलोनी पर हमला, क्या गया है पाकिस्तानी माशरे को? सर देखिए, बात यह है कि मौजूदा पाकिस्तान जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है, ये जनरल ज़िया-उल हक का पाकिस्तान है। जब से ये कानून बना था तौहीन मज़हब का, उसके बाद से अब तक 1100 से ज़ायद मुकदमे रजिस्टर हो चुके हैं जो ओवरवेलमिंगली मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि इस कानून को लोग अपने मफादात और अपने जो उनके जो झगड़े हैं उनको सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो इसमें अफसोसनाक बात यह है जी नहीं, मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं कह रहा था कि जी लोग सर खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसिफ वहशाना तरीके से कत्ल का इर्तिकाब कर बैठते हैं, क्यों? बात यह है, देखिए कि इसमें अभी तक जब से ये कानून आया है ज़िया-उल हक के दौर से, उसके बाद से अब तक किसी को अदालत की दी हुई सज़ा जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक दर्जन के करीब लोग जो हैं जिन पे इल्ज़ामात लगे तौहीन मज़हब के, तौहीन रिसालत के, वो कत्ल हो चुके थाने पहुंचने से पहले या थाने पहुंचने के बाद, और बाज़ लोग जेल पहुंचने के बाद भी कत्ल हुए हैं। अदालत की दी हुई सज़ा अभी तक किसी को नहीं मिली इस सिलसिले में। तो ये तमाम हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस कानून में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने मफादात हासिल करने के लिए। अच्छा, गौरतलब बात तो बातचीत भी होती है। गौरतलब बात तो ये भी है डॉक्टर साहब कि मुल्क में शिद्दत पसंदी के खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मुल्क में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त से सर किस तरह निपटा जा सकता है? देखिए, उसके लिए जिस नफ्सियाती जंग की ज़रूरत है, जिसमें मीडिया इन्वॉल्व हो, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो, जिसमें टीचर्स इन्वॉल्व हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लोगों को बताया जाए, वो काम नहीं हो रहा। रिलीजियोसिटी जो है वो अपने उरूज पे है। यहाँ तमाम सड़कों के नाम मज़हब पे हैं, दरख्तों पे अल्लाह ताला के 99 नाम लिखते हैं, सड़कों पे ट्रैफिक की हिदायत की बजाय मजहबी नारे लिखे होते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने एक माहौल ऐसा बना दिया है कि जिसमें शिद्दत पसंदी जो है उसको पसंद किया जाने लगा है। अच्छा सर, इख्तिसार के साथ मैं इस पे भी आपका तबसरा सुनना चाहूंगा, क्या हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस होकर के रह गए? बात यह है कि हमारी हुकूमत जब भी मजहब का कोई सवाल आता है, न सिर्फ ये हुकूमत बल्कि इससे पहले की भी जो हुकूमतें थी,
उनका रवैया माजरत खाना हो जाता है और वो कोई जुर्रत के साथ फैसला करने की अहलियत नहीं रखती। जी डॉक्टर मेहदी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, काश मेरे पास और वक्त होता सर। थैंक यू। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि अफगानिस्तान में तकरीबन 10,000 किलोग्राम वजनी अमरीकी बम गिरने के बाद वहां रद्द अमल क्या है। और प्रोग्राम के आखिर में देखिएगा कि तुर्की में आईनी रेफरेंडम किस तरह मुल्क का सियासी ढांचा बदल सकता है और नस्ली अकलियतों की तशवीश है क्या। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। अफगानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई ने अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा बम गिराए जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला कहते हैं कि बम हमले में जंगजुओं के अलावा किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका ने जुमेरात को अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार पर 9,800 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। ये GBU-43 है, जिसे मुआब भी कहा जाता है, यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट या उर्फ़ आम में सब बमों की माँ। ये सबसे बड़ा गैर जौहरी बम है जिसे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका निशाना अफगानिस्तान में नाम नहाद दौलत इस्लामिया के जंगजू हैं। अफगान हुकूमत का कहना है कि उन्हें पहले मुतला कर दिया गया था कि इस बड़े बम को फेंका जा रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जमान शॉन स्पाइसर ने कार्रवाई की तफसील बताई। हमने सुरंगों और गारों के उस निज़ाम को निशाना बनाया है जो दौलत इस्लामिया के जंगजू इलाके में आज़ादाना नकलो हरकत और अमरीकी फौजी मुशीरों और अफगान फोर्सेस पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अमरीकी मिलिट्री कमांडर कहते हैं कि अफगान फोर्सेस की मदद के लिए मजीद फौजी मदद दरकार है। 15 साल पहले तालिबान की तरफ से बनाई जाने वाली ये सुरंगें और गार अब दौलत इस्लामिया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये बम पाक अफगान सरहद के करीब सूबा नंगरहार में सुरंगों और गारों के एक नेटवर्क पर फेंका गया। वहाँ दौलत इस्लामिया के अड्डे हैं। गुज़िश्ता रात का बम बहुत बड़ा था। जब ये गिरा तो सब कुछ हिल गया और मेरा ख्याल है कि इनका एक गिरोह भी मारा गया। ये अच्छी बात है कि इनका सफाया हो गया। वहाँ कोई आम शहरी नहीं है। लेकिन इस अमरीकी कार्रवाई पर साबिक सदर हामिद करज़ई ने बहुत शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि एक नए और ख़तरनाक हथियार को टेस्ट करने के लिए हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा गैर इंसानी और सफाकाना इस्तेमाल है। सदर ट्रंप ने एक हफ्ते के अंदर अंदर सबसे पहले शाम और फिर अफगानिस्तान को टारगेट बनाया है। आरिफ शमीम, BBC न्यूज़। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाले ने पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलाकात में फौजी अदालत से मौत की सज़ा पाने वाले कुलभूषण जाधव पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि हमें कुलभूषण जाधव के खिलाफ चार्जशीट और सज़ाए मौत के फैसले की सर्टिफाइड कॉपियाँ दी जाएँ। शाम के महसूस शहरों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर ले जाने का अमल शुरू हो गया है। ईरान और कतर की कोशिशों से किए जाने वाले मुआहदे के तहत इन शहरों से तकरीबन 30,000 अफराद को निकाला जाएगा। मुतासरीन को लेकर बसें शहर हलब पहुंचेंगी। जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया में हालिया कशीदगी के बाद चीन के कौमी ब्रॉडकास्टर CCTV की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने बीजिंग और शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग के दरमियान परवाज़ों को पीर से मंसूख करने का हुक्म दिया है। तुर्की में इतवार को सदर के आईनी इख्तियारात में तोसी के बारे में रेफरेंडम हो रहा है। आइन में मुजव्वज़ा तरामीम के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा और सदर को वज़रा और जज नामजद करने और फैसला सादिर करने का इख्तियार भी होगा। गुज़िश्ता 2 साल से जारी दहशतगर्दी की वजह से अवाम की अव्वलीन तरजीह जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मौजूदा हालात का असर मुल्क की मईशत पर भी हुआ है। तुर्की से हमारे नुमाइंदे मार्क लोइन की रिपोर्ट, फराज हाशमी की ज़बानी। 33 बरस में बेवा हो जाने का अजाब। आए नूर जमान तन्हा अब 7 बच्चों का बोझ उठाने पर मजबूर हैं। उनके शौहर मोहम्मद सालेह उस वक्त हलाक हो गए थे जब बारूद से भरा हुआ एक ट्रक फट गया था, जिसके बारे में ख्याल है कि वो PKK के कुर्द जंगजुओं का था। इन बच्चों से इनका बाप छीन लिया गया। उन्होंने मेरे शौहर की शनाख्त उसकी बाएं उंगली से की। मेरे होश उड़ गए। उन्होंने हमारे ख्वाब छीन लिए और बच्चों से उनका बाप। मैं PKK को देखना भी नहीं चाहती। मैं उर्दवान का साथ दूंगी जिन्होंने हमारी मदद की। तुर्की के इस पसमानदा गांव में 16 अफराद हलाक हुए। तुर्की भर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं।
गुज़िश्ता 2 बरस से कुर्द बागियों और दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के हमलों ने मुल्क में अमन व अमान तबाह करके रख दिया है। तुर्की के इस जनूबी कस्बे में तुर्क फौज ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई की और अब ये कस्बा खंडर बन गया है। सदारती इख्तियारात बढ़ाने के लिए होने वाले रेफरेंडम में सिक्योरिटी को बड़ी अहमियत दी जा रही है। हुकूमत कुर्दों की हामी हिज़्ब इख्तिलाफ से सख्ती कर रही है और उनके 13 मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उर्दवान कामयाब हो गए तो कुर्दों के खिलाफ उनकी पॉलिसी की तौसीक हो जाएगी और तुर्की में एक मुतलकुल अनान हुकूमत कायम हो जाएगी। अगर वो कामयाब ना हो सके तो उन्हें कुर्दों की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है कि अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएं। कुर्द मसले का हल उर्दवान की कामयाबी के तौर पर याद रखा जाएगा, लेकिन इस वक्त कुर्दों के नुमाइंदे कैद हैं, उनका मीडिया बंद है और हालात कशीदा हैं। कुछ लोग हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और कुछ PKK को। सवाल ये है कि क्या 2 साल की बदअमनी का असर रेफरेंडम पर पड़ेगा? उर्दवान का कहना है कि वो तशद्दुद पर काबू पा लेंगे। रेफरेंडम की मुहिम में हर तरफ उनके बड़े बड़े पोस्टर नजर आते हैं, जबकि मुखालफीन बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन जायज़ों के मुताबिक मुकाबला बहुत सख्त है। उनकी अपनी जमात में कुछ अनासिर उन्हें वसी इख्तियारात देने के मुखालिफ हैं। किसी फर्द या इदारे की सदर के आगे नहीं चलेगी। ये जमहूरियत की नफी है, इसलिए मैं इसकी मुखालिफ हूँ। तुर्की माजी में मुश्किल हालात से गुजरा है, लेकिन अब फिर मसाइल में घिरा हुआ नजर आता है और पुरसुकून रास्ते की तलाश में है। ताहम अब तुर्की की तारीख में इसे एक बहुत मुश्किल फैसला करना है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC शेम सीरीज के दौरान बनने वाले खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी-जामई। इसके साथ ही से अभी काम को पहुंचा, मुझे पूरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।